यू सेड अर्लियर कि एक आदमी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फायर एज अ कॉन्सेप्ट को जानता है और उसको अप्लाई करता है, they generally tend to be more financially organized than the other person. Yes. What does that organization look like? Like, how does one imagine the organization? It is very person specific. One is they will save more. They will be very rational. Impulse buying नहीं करेंगे. That's where it starts. Then they will start investing. So then they will have insurances. So what we call is the framework: term insurance, health insurance, emergency fund. Oh, so you got to go slower on that. Yes. The framework. हाँ, THE. Okay. टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड. Okay. ठीक है. ठीक है. तो आपने सैलरी फिक्स कर ली, आपने सेविंग कर लिया, अभी आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है. ये 5 बेसिक्स होने के बाद ही आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचो. टर्म इंश्योरेंस ताकि इफ समथिंग हैपन्स टू यू, योर फैमिली शुड बी सेफ. हेल्थ इंश्योरेंस सो दैट इफ देर इज अ हेल्थ इमरजेंसी you don't lose your corpus. In fact, I read that almost 70% of Indian families are one catastrophe away from poverty. They're out of poverty, but one health hazard in any family and a bigger hazard कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ भी हो गया घर में, माँ बाप किसी को, and that just vanishes savings because they are not covered. 70%, right? Most of India is. So you have to cover for health insurance, term insurance, फिर इमरजेंसी फंड कि आपके 6 से 12 महीने के एक्सपेंस आपके पास रेडी होने चाहिए कि कभी भी जॉब गया तो आपको कॉर्पस से विड्रॉ ना करना पड़े. अब इसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट की. है तो 5 स्टेप्स आर वेरी क्लियर. फिक्स योर सैलरी, सेव इनफ, टेक टर्म इंश्योरेंस, टेक हेल्थ इंश्योरेंस, सेट इमरजेंसी फंड. ये करने के बाद यू आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट. इट्स इन माई ओपिनियन. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल probably iPhone but don't have insurance, right? Or like really good phones. तो if you start thinking कि मुझे फायर करना है तो ये सब के क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे, तो आप ये सब चीज़ें फिक्स करना चालू करोगे एंड दैट विल फंडामेंटली चेंज योर बिहेवियर इन फाइनेंस. यू विल हैव क्लैरिटी कि मैं ये तो नहीं खरीद सकता, ये मुझे शायद पोस्टपोन कर लेना चाहिए, शायद इतने महंगे शूज़ नहीं लेने चाहिए. उसके बाद भी शायद आप लोगे, बट देर इज एटलीस्ट सम माइंडफुलनेस टू इट. Got it. राइट? तो इन दैट सेंस यू बिकम ऑर्गेनाइज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ फायर एंड फाइनेंशियल प्लानिंग etc. Right? So term insurance, health insurance and emergency fund, and then you start investing. इस सब के बीच में जो इंडिया का लगाव है towards FDs, where does that fit in all of this realistically and ideally? मतलब क्या realistically हम बहुत ज़्यादा are we over leveraged on FDs as a country, or do you think we should think in different ways? मुझे लगता नहीं कि यंग जनरेशन को इतना फिक्सेशन है FD पे. अच्छा. I'll tell you very distinct personas that I have seen. Okay. People who are digital first and people who are offline first in trust formation. And that fundamentally changes their investment strategy. For example, I'll tell you, for my parent generation, for example, they can't form trust digitally. Agreed. They would think HDFC is a good bank not because it has so much market cap. वो उनको अच्छा लगता है कि उसका बाजू में ब्रांच है. So they need physical presence, right? And they are rooted in that physical. So वो FD करेंगे, गोल्ड करेंगे, रियल एस्टेट करेंगे. ये फिजिकल है, राइट? हाँ. जो डिजिटल फर्स्ट है वो they are pretty much open. So they will like equities. They are not very much bullish on FD. They will know कि FD का एक प्लेस होता है, उसके लिए FD करना चाहिए, तो वो करेंगे. They will look at bonds. They will look at more rationally, and they will transact, invest digitally. If you now look at this, which is largely, if you look at FD investors are 150 million investors. Stock investors are about 100 million investors. And roughly 50 million are already investing digitally on mutual funds, equities. तो ये जो 50 million है उनका इतना एफिनिटी रियल एस्टेट से तो बिल्कुल नहीं है, FD से कम हुआ है काफ़ी. सो वो पुराना इंडिया मुझे लगता नहीं है कि वो है जो FD सेंट्रिक. वो बहुत जनता है, बट इफ़ यू लुक एट यंग जनता 20-30 वाली, उनका FD से इतना ज़्यादा लगा. मतलब ये पॉडकास्ट जो व्यूअर है, दीज आर डिजिटल फर्स्ट, राइट? आई एम श्योर वो लोगों को इतना FD से ये नहीं होगा. सिमिलरली रियल एस्टेट से भी नहीं होगा. रियल एस्टेट से तो बिल्कुल नहीं होगा. और उसके पीछे क्या वजह है?
उसका टिकट साइज़ काफ़ी ज़्यादा है. अच्छा. तो आपका पहले तो घर लोगे और मेट्रो सिटीज़ में घर महंगे हैं, टियर 2 में भी महंगे, बट तो वो कॉर्पस जमा होगा ही नहीं ये 20s और 30s वाले मोस्ट ऑफ द लोगों का. राइट. एंड उनके लिए ऑप्शन है इक्विटी. लाइक पुराने ज़माने में आपको अगर रिस्क लेना था, कहीं लगता था कि कहीं आई हैव रिस्क एपेटाइट, मेरे को 5 लाख कहीं डालने हैं, तो स्टॉक मार्केट वॉज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, इनएक्सेसिबल, देर वॉजंट इनफ एजुकेशन, probably there wasn't enough safeguards in terms of regulatory oversight. या वो जुए जैसा है. देर वॉज अ वेरी कॉमन ये कि स्टॉक मार्केट जुआ है. राइट. तो आप सट्टा बाजार. हाँ, सट्टा बाजार है. हाँ, तो आप रियल एस्टेट में ही जाओगे. अभी आपको ऑप्शंस है यहाँ पे. देर इज ए गुड इनफ एजुकेशन एंड पीपल कैन रैशनली सी. Got it. If you are interested in my conversation with India's best, then you can listen to us exclusively on Spotify also. There's a link in the description. Press it. Listen to us as you walk, as you're in the train, as you're driving, as you're working out, as you're flirting. You'll still like it.